class. Today's topic is very basic and fundamental topic as per concepts of the microeconomics and basically economics. So, but it has a huge worth because most of the fundamentals theories, basic theories of the economics is based on this concept. So, the today's topic is demand. Demand. So, first of all, we want to learn that what is the demand, and then we will learn that what is the law of demand. So, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि demand refers to the quantity. Okay, so that's mean the peoples are demanding some quantity, and we know that why the quantities are demanded, because they have some utility. In the previous lecture we discussed about that the things are desired, demanded because they have utility. So people's demand refers to the quantity of the commodity which people are ready to buy. It means people are ready to buy at different prices. So we know that we discussed the concept of the scarcity. आपको कोई चीज़ फ्री नहीं मिल सकती, आपको उसके लिए एक प्राइस, एक मनी पे करनी पड़ेगी. So that's mean limited are resources and the people want to use the goods and services. Why? Because they have some utility. So that's mean the people are ready to buy and they are ready to give, they are ready to pay prices, so at different prices. So this is the simple definition of the demand. And in other way we can also discuss that the desire to buy something and buyer has ability to purchase it. So two things are very important. So they are desiring and they have ability to purchase it. We can also write in this equation like that. The demand will be desire plus purchasing power. So this is purchasing power is very important because the many people has desire, but if they do not have the purchasing power, so it will not count in their demand. So that's mean अगर मैं कोई चीज़ desire करता हूँ, so I want to take the 1 unit of the mango, I want to eat the mango. So this is my desire and I know that the 1 unit of the mango is rupees 5, 10 rupees, and if I have 10 rupees, that's mean this is my purchasing power. So I have 10 rupees and I have desire, so it will convert it into demand. In the contrary side, let's suppose we are living in a small house and I am the head of the household and I want that I want the big house, I want the luxury house. So I went to the market and find out the rate. So I found that this is the X thousand million rupees. So that's mean I do not have that amount. जब मुझे वो मकान या वो हाउस होल्ड ख़रीदने की मेरे अंदर सकत नहीं है, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, सो दैट्स मीन वो मेरी डिज़ायर तो है बट इट इज़ नॉट माई डिमांड. बिकॉज डिमांड कब बनती है? जब प्लस परचेजिंग पावर, जब मैं उसको परचेजिंग पावर के साथ देखूँ. दिस इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड. Now we comes on a very important law, the law of demand. Law of demand, that means demands cannot be see in the isolation of just desire and purchasing power. We must have to think about the prices of the goods. So the relationship between, the law is very simple. Relationship between quantity demanded and prices. Quantity demanded and prices. The relationship between, this is called the law. Quantity demanded, that means its quantity is demanded. Okay, these are the prices of these goods. So when we have some relationship, it becomes a law of demand. अब law of demand behave कैसे करता है? वो people quantity demanded के time with respect to price कैसे behave करते हैं, इसको हम देखते हैं. If other things do not change, any condition of the ceteris paribus, people purchase more of good when its prices is lower and less of its prices is high. How can we interpret this? Very simple, कि जब चीज़ों की कीमतों में कमी वाक़ई होती है
तो लोग उस चीज़ की डिमांड को ज़्यादा करते हैं। जब चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा होता है तो लोग अपनी डिमांड को कम कर देते हैं। ये बहुत बहुत जनरल बिहेवियर है आपकी डे टू डे लाइफ में। आप ऑब्ज़र्व कर लीजिए, लेट्स सपोज इफ़ कोई भी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, आप ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप एक साल में आप 5 सूट्स बनाते थे अपने, दैट्स मीन यू परचेज 5 सूट्स। बट अगर आप देखते हैं कि अगर चीज़ों के प्राइसेस या इन्फ्लेशन रेट ऊपर जा रहा है, सो आप कहते हैं कि अब मुझे अपने आपको गुजारा करना पड़ेगा 5 के बजाय 3 सूट पे, मैं 3 सूट्स पे मैं गुजारा कर लूँगा। सो ये भी एक बात सिंपल, हम ये भी कहते हैं समटाइम कोई भी चीज़ हमारे रेगुलर लाइफ के अंदर इस तरह से होती है कि हम कोई चीज़ बहुत फ्रिक्वेंटली हर वीक परचेज़ करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन सम टाइम हमें लगता है कि यार अगर इस चीज़ की प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है तो या तो हम शिफ्ट करें या हम कोशिश करें कि हम जो है वो इसको की क्वांटिटी में कमी वाक़ करें। ये बहुत जनरल बिहेवियर है, यानी कि प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से क्वांटिटी में कमी वाक़ होती है। ये डे टू डे रूटीन फिनोमेना है। अब इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि अगर प्राइसेस और गुड्स के दरमियान हमें एक नेगेटिव रिलेशनशिप मिलती है, बिकॉज वी आर सेइंग दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप, दैट्स मीन अगर कोई एक चीज़ बढ़ेगी और कोई एक चीज़ कम होगी, दैट्स मीन इन दोनों के दरमियान इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, इन दोनों के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। सो अगर ऑन द एक्स एक्सिस हम वी टेक्स द क्वांटिटी डिमांडेड एंड on the y axis we are taking the prices, so we will see that we will have some pattern like that. This is our quantity demand. So this is called a demand curve. अब it is a demand curve so denoted by the capital D. तो अगर ये हमारे पास डिमांड कर्व बनता है तो हमें यह नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपके पास डिफरेंट प्राइजेज है, यानी 10, 20, 30, 40, 50, और यहाँ पर डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जो भी आप ले सकते हैं। अभी हम वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट जनरलाइजेशन। सो फॉर दिस पॉइंट how can we think about it? So this is the price level and this is the quantity level. This is the Q1, this is the P1. ये एक कोई सर्टेन प्राइस होगी जैसे 10 रुपये, और ये हो गए 1 kg मैंगोज वाला, कुछ भी आप ले सकते हैं। सो ये द प्राइस ऑफ 1 शर्ट। इफ़ वी हैव this price, so this is a higher price and we are demanded less. If we are continuously decreasing the price, so we will increase the demand. So very simple, increasing the quantity. Why we will increase the quantity? When the price will go down. If the price will go up, we will contract our this demand curve and और हम पीछे की तरफ मुड़ेंगे और कम quantity demand करना शुरू कर देंगे. So this is the basic relationship between the prices and quantity demanded. Now, very important question that arises in our mind next after this relationship. Why demand curve has negative slope? Very simple answer is that because the prices have a negative effect on the demand. Okay, fine. Think as an economist. What happens actually? We know that in the negative slope, in the downward slope, we have 3 different type of the effects. What are the effects? Number 1, new buyers. Number 2, income effects. Number 3, is the substitutes. Okay, so just I am giving an idea, an important concept here regarding the goods, regarding the substitute goods. तो एक मिनट लेते हैं और समझते हैं कि substitute goods क्या होती हैं. Substitute goods mean that कि अगर एक गुड को हम दूसरी गुड से रिप्लेस कर सकें और हम उससे भी वही सेटिस्फेक्शन ले सकें. मिसाल के तौर पे हम एज्यूम करते हैं
कि मैंगोज एंड बनानाज आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर हम मैंगो से हमें एक डिफरेंट टेस्ट मिलता है, बनाना से डिफरेंट टेस्ट मिलता है, लेकिन कंज्यूमर हैज़ एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट दैम। कि चिकन एंड बीफ, चिकन दैट्स मीन इज आल्सो मीट एंड बीफ इज आल्सो मीट, हमें गोश्त खाना है। सो लेट्स सपोज इफ द प्राइसेस ऑफ द बीफ आर हाई, सो हम क्या करेंगे, हम चिकन ले लेंगे। दैट्स मीन सेटिस्फेक्शन तो हमारी एक आ जाएगी ना। सो these goods are called the substitute goods. So why these three effects ensure that the demand curve is negative, we will read about it. सबसे पहले न्यू बायर्स इफेक्ट। आपने देखा कि जब भी किसी चीज़ की प्राइसेस कम होती हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर कुछ न्यू बायर्स मार्केट में एंटर होते हैं। दैट्स मीन कि पहले एक चीज़ थी वो उनकी लोगों की दस्तरस में नहीं थी, स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ सोसाइटी जो उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी वजह से उसकी प्राइसेस कम हो गई। सो अब आप नोट करें कि वो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी या वो पोर्शन ऑफ द पीपल भी उस गुड को यूज़ करने लगा। तो व्हाट विल बी, दैट्स मीन द प्राइसेस के नीचे जाने से क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो जाएगा। ओके, नंबर वन। दूसरा भी एक इफेक्ट होता है जिसके हम कहते हैं कि ये अगर दिस इज़ कॉल्ड द इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट से फ़ायदा क्या, इनकम इफेक्ट से ये होता है कि अगर आपकी इनकम इफेक्ट ज़्यादा है तो आपकी इनकम जब बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली आप एट हायर प्राइसेस के ऊपर उस क्वांटिटी को डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो दैट्स मीन अगेन कि प्राइसेस की वजह से, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से मेरे अंदर क्वांटिटी डिमांड आ गई। सेकेंड थिंग इज़ दैट द सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मीन दैट कि एक और वजह होती है कि डिमांड में इजाफे की, और वो वजह ये है कि अगर आपकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी प्राइसेस अगर बढ़ेंगी तो आपकी डिमांड में इजाफा हो सकता है। सो दीज आर सम बेसिक रीजंस दैट बाय विच वी कैन से दैट कि ये इफ़ेक्ट्स होते हैं, डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड हो सकता है। सो आफ्टर दिस we will learn a small concept. This is an extension of this concept. This is called the individual and market demand. What is the individual and market demand? It's very simple. Actually हम सब मुख्तलिफ इंडिविजुअल यूनिट्स हैं इस सोसाइटी के। अगर इस सोसाइटी में 2 लाख लोग हैं तो मैं एक हूँ, तो मैं एक यूनिट हूँ, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग होंगे तो सब मिलके सोसाइटी बनाते हैं। सो मेरी अपनी एक डिमांड है, सामने वाले की अपनी एक डिमांड है, आपकी अपनी डिमांड है, सबकी अलग अलग एक डिमांड्स हैं। तो अगर उन तमाम डिमांड्स को एग्रीगेट कर दी जाए, यानी तमाम इंडिविजुअल डिमांड्स को एग्रीगेट कर दी जाए, तो वो बन जाता है मार्केट बिहेवियर, मार्केट डिमांड। सो इसके लिए हम इसको जस्ट ग्राफिकली जिस तरह हम बात कर रहे थे तो उसको हम इस तरह समझते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज एक सोसाइटी में ये 3 लोग हैं, तो इनका अपना एक डिमांड का बिहेवियर है। एक ही कमोडिटी, है फॉर मैंगो। लेट्स सपोज मैंगो के बारे में मेरा कर्व ये कहता है, इसमें मैं स्टीप हूँ, मतलब प्राइसेस बढ़ें ना बढ़ें, तो ज़्यादा बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही, मेरी क्वांटिटी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा, मैं सिर्फ इस पोर्शन में मूव करूँगा। एक दूसरे साहब हैं वो प्राइसेस से बहुत अफेक्टेड होते हैं। दैट्स मीन के प्राइसेस ज़्यादा है तो वो कम कर रहे हैं, वो कम प्राइसेस कम होने पर, तो जितना स्टीप हो रहा है कर्व और उसका जो है वो उनको प्राइसेस से इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन जितना वो है फ्लैटर हो रहा है उतना उनको प्राइसेस से इफेक्ट हो रहा है। इसी तरह से एक और भी डिमांड हो सकती है, जैसे उनका ये हो सकता है, मिडिल में हो सकता है। तो ये देयर आर डिफरेंट थिंग, स्टीप, फ्लैटर, मिडिल, तो ये सब अलग अलग तरीके से मैंगोज़ की डिमांड कर रहे थे। लेकिन ये एक सोसाइटी, इसमें सिर्फ ये 3 लोग हैं, तो इन तीनों का जब हम डिमांड कर्व ऐड कर लेंगे, इनका डाटा जब हम ऐड कर लेंगे तो वो जो बन जाएगी, दिस इज़ कॉल्ड द मार्केट डिमांड। सो दिस इज़ द ए डिमांड, दिस इज़ द बी डिमांड, दिस इज़ सी डिमांड। व्हेन वी एग्रीगेट टू द ऑल, सो ये भी एक किस्म का डाउनवर्ड बिहेवियर होगा, जिसमें थोड़ी सी स्टिफनेस होगी, थोड़ा सा मिडिल होगा, थोड़ा सा ये होगा। तो इन सब को जब हम एग्रीगेट कर लेंगे एंड देन वी प्लॉट
So this is called the aggregate market demand. So in the last we will learn that कि अगर ये behavior है, so हम ये देखते हैं कि this is the quantity demand, और हमने ये देखा कि नेगेटिवली स्लोप होने की वजह से हम ये कहते हैं कि उसमें न्यू बायर्स आ सकते हैं. अगर किसी चीज़ की प्राइस नीचे हो रही है तो वो लोग जिनकी कैपेसिटी नहीं थी वो आ गए. इनकम इफेक्ट दैट्स मीन कि इनकम इज़ इन द सेंस ऑफ द रियल इनकम बढ़ गई. अगर प्राइसेस फॉल होती हैं तो वो अपनी उस इनकम के अंदर चीज़ों को परचेज करना शुरू कर देते हैं. सब्स्टिट्यूट इफेक्ट मीन क्या है कि अगर वो किसी सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस में इजाफा होता है तो वो. लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर ये डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाए, सो प्राइसेस किस तरह से बिहेव करती हैं. सो अगर लेट्स सपोज एंड दिस कर्व इज शिफ्टिंग फ्रॉम हेयर ऑन द राइट साइड, सो व्हाट विल हैपन एक्चुअली. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग कि प्राइसेस नहीं गिरी है नीचे, प्राइसेस वही हैं, प्राइस लेवल वही है, लेकिन अब लोग ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं उसी सेम प्राइसेस पे. दिस इज़ वेरी सिंपल. सो इसमें एक रीज़न ये हो सकता है कि ये तो आपका जो इनकम इफेक्ट था ये तो था प्राइसेस फॉल करने पे. हम यहाँ पर एक बात है कि प्राइसेस को होल्ड करके रख रहे हैं. सो दिस इफेक्ट जो था पुराना वाला जिसके अंदर डिमांड कर्व की बात हुई थी वो था रियल इनकम का कॉन्सेप्ट. लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर आपकी इनकम में इजाफा हो जाता है, दैट्स मीन आपकी जो नॉमिनल इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाती है. अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो आप सेम प्राइस के ऊपर ही ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड शुरू कर दोगे. सो दैट्स मीन आपका कर्व शिफ्ट हो गया. इसी तरह से पहले हम नहीं एक बात को हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक स्कूल था, उसकी हम एक स्टूडेंट को अपने एक बच्चे को उसमें पढ़ा रहे थे और वो हायर वो फ़ीस चार्ज कर रहा था, तो हमने वहाँ से तो फ़ीस कम नहीं हुई, तो उसी फ़ीस पे उसी प्राइस के ऊपर हमने एक और बच्चे का वहाँ पे एडमिशन कब करा दिया, यानी कि जब एक और बच्चे का एडमिशन करा दिया जब हमें हमारी सैलरी में इनकम में इजाफा हुआ. तो ये शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व अगर हो जाती है डिमांड कर्व, तो दैट्स मीन इसका रीज़न ये है कि या तो वो इनकम बढ़ेगी और उसकी वजह से आप सेम प्राइस के ऊपर नेक्स्ट क्वांटिटी भी डिमांड कर सकते हैं. एंड सेकंड थिंग इज़ डैट कि अगर हम इसी डिमांड कर्व को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं और इससे लर्न करने की कोशिश करें कि ये क्या कह रहा है. सो दैट्स मीन या हम इसको थोड़ा सा रिवर्स करके पढ़ते हैं कि यहाँ पर अब ये इस क्वांटिटी के साथ क्या बिहेव बना रहा है. तो यहाँ पर वो कहता है कि आपको P2 Q1 इज़ डिमांडेड ऑन P2. आप यही वाली प्राइस जो थी अब ज़्यादा प्राइस पे करने पर राज़ी हो रहे हैं. सो दैट्स मीन इनकम इफेक्ट दो चीज़ें लेके आता है. आप उसी सेम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं या पुरानी क्वांटिटी ज़्यादा प्राइस के ऊपर परचेज करने के काबिल हो जाते हैं. सो दिस इज़ अ टोटल लेक्चर ऑफ द डिमांड कर्व and by which we can understand that what is the quantity demanded and what is the relationship between the prices.